respected principal, guests of honor, beloved teachers, and my dear students. A hearty welcome to all of you. Today, I, Deepshi, from Commerce Department, on behalf of KRM College, Nakoda, extend a warm welcome to all of you who are present in this seminar, that is mutual funds. जब मैं वर्ड म्यूचुअल फंड्स बोलती हूँ तो हमारे माइंड में क्या आता है? वो एडवर्टीजमेंट जो हम सब देखते हैं टीवी पे कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज ऑल रीड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, या म्यूचुअल फंड्स सही है. So this concept is gaining popularity nowadays. But what exactly is mutual? हम सबको पता तो है कि ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, बट ये एग्जैक्टली है क्या? म्यूचुअल फंड्स क्या है, इनमें कैसे इन्वेस्ट करें और ये काम कैसे करता है? सो आप सबके ये सारे सवाल आज आंसर हो जाएंगे बाय none other than Mr. Navdesh Gambhir, our resource person for today's webinar. Mr. Navdesh Gambhir is presently teaching at Delhi Public School, Ramamandi, Jalandhar. Last year, he was teaching as assistant professor in DAV College, Jalandhar, and he completed his master's in commerce with distinction in year 2019 and qualified UGC NET. He has completed national certification in capital market professional from NSE Academy, Mumbai. He is runner-up of Virtual Stock Mind, a national level competition held by ICICI Securities. He is running his own financial blog at website thecommercians.co.in, and he is also a co-poet in anthology Coffee and Tea Books. So before moving ahead, I would like to request Principal Sir to please address our today's audience. Thank you. Thank you, Deepshi. First of all, I congratulate all the participants for joining this wonderful webinar on one of the most burning topic of today's financial life, that is mutual funds. I take this opportunity also to congratulate Department of Commerce to undertake this venture and organize this webinar. Dear participants, as you are aware, that because of COVID pandemic-19 peculiar situation, all the educational world had to shift willy-nilly to online medium of instruction. And whether we were prepared or not, we had to accept it. And I'm happy to share that KRM DAV College, Nakoda shifted from offline to online and adjusted this shift in a very natural and a very, what you call, seemingly very natural and comfortable kind of manner. And I'm again proud to share with you that during this journey of our own college journey of organizing webinars and providing education through online mechanism, we have had organized series of webinars, series of interactive sessions, series of live demonstration and workshop involving practical training, and all of them were organized very, very successfully. Recently, today in the morning, we concluded one online basic computer training course which ran for 120 hours, and people were from far off end of this country participated in that, meaning thereby we have been able to take our education and our whatever we wanted to share with our friends throughout the country and even outside. And keeping that tradition alive, Department of Commerce has taken this wonderful venture of organizing a webinar today on mutual funds. Mutual funds, as Deepshi was rightly saying, that it is one of the most, a phrase which is gaining currency, and not only with the financial literate people, but with anybody who is interested in making or what you call duplicating or enhancing his financial status. So what actually mutual funds are and what are the basic what you call what are the basic aspects related to mutual funds, we wanted to share with the people so that we can make them financially literate people.
And for this, we have again done one wonderful experiment by involving one of our most young but very dynamic, talented, and competent resource person, Abdeep, and we are happy to welcome him as well. He happens to be our own product of our DAV fraternity, and I'm very sure that you will have a very lively and a very meaningful session with him. And at the end of the session, you can have your own queries, you can have your own doubts, so that at the end of the session, when you leave this session, you are more empowered, more literate, and more enlightened on this mutual fund training, and not taking much of your time and not standing between you and our worthy resource person. I take this opportunity once again to welcome all the participants. I have been told that participants are available from various corners of the country, and that speaks the enthusiasm among our participants to know and learn more and more about mutual funds. And I too would like to learn something from today's session. And once again, I congratulate and welcome all the participants and our worthy resource person. Thank you, and over to Deepshi for further deliberations. Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. सर की इंस्पिरेशन के साथ ही सारे काम चलते रहते हैं. सो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे रिसोर्स पर्सन नवदीश गंभीर को बुलाना चाहूंगी. सो ओवर टू यू नवदीश सर. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. I think I am audible to everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. First, I'm very grateful to DAV College Nakodar as well as principal sir who had invited me to discuss and to discuss with you all the aspects of a very important subject, a very important topic, that is mutual fund. So before starting the webinar, I would like to add some things before I start this. If you all have any query, you can just write your query in the chat box. I would like to request all the participants kindly switch off their mics as well as their cameras, so it will be a better experience for you all, so that our bandwidths do not go low. So whenever we all talk about stock market, whenever we talk about mutual funds, many things that come in our minds. Obviously, the risk factor or the frauds that are going on in the economies, whether it is Indian economy or whether it is any other economies. If you talk about cryptocurrency, that is one of the burning topic of these days. But mutual funds have been a very important and a very crucial aspect of Indian economy, and as well as it has uplifted Indian economy in a very positive manner. So now, without wasting time, I will directly take you to a interactive PPT. I think the interactive PPT is visible on your screen. Yes or no, students? Yes, the interactive portion is visible on your screen. I think it is visible. So this session which I'm going to conduct, I want it to be a two-way communication side, because I want you all to communicate to me. How you all can communicate to me? We have two options. First option which we do have is the chat option, which is available on this application. You can just go and write your if you have any query or if you have any doubt regarding any topic, you can just write your query in the chat box, or there is another option of raising the hands. So you can simply raise the hand. So that will be easy for me to identify the student who is asking the question or the query. So without wasting the time, I'm going to start this session. I think this session is going to be a worthy one and a fruitful one. Okay. So first, talking about the agenda of the day. First, I would like to congratulate KRM DAV College Nakodar, who had invited me for this wonderful event on mutual fund, the surest means for wealth creation. I'm thankful to the Commerce Department as well as the principal sir, who had kept their belief in me. So I'm going to start the session. So first, about the
agenda of this session. If I talk about the agenda of this session, okay. So the agenda of this session will be, first we'll be talking about a brick building session where I'll make you aware what is the concept of mutual fund, and I'll give you a hint about, not the whole one, but a hint or a bit about the concept of NAV, the concept of SIP, or the concept of compounding. And at last, we'll be having a query session that will be a 10-minute query session about all the concepts that we are going to discuss in this session. Before starting this session, I would like to give you a disclaimer that by the means of this webinar, I'm not going to promote or demote any brand, any company. All the examples that I am going to take will be for your understanding. And at last, we all must be aware about this thing. We have read, we have heard this thing a lot number of times, that mutual fund investment is subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस लाइन के अलावा म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता। So I'll try to make you aware in a layman language that how you can be aware about this concept mutual fund, and you can also make other people aware about this concept, be it your family, be it your friends. आप किसी से भी बात करेंगे इस सेशन के बाद तो आप बहुत आसान लैंग्वेज में उनको बता पाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। सो फर्स्ट अ वार्निंग कि आप इस वेबिनार के बेसिस पे इन्वेस्ट मत करिए, रैशनल इन्वेस्टर बनिए और अपनी रिसर्च के बेसिस पर ही इन्वेस्ट करिए। आप किसी की टिप्स या ट्रिक्स के ऊपर बिलीव मत करिए। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट, बिफोर टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ म्यूचुअल फंड, I would like to tell you story of Mukesh. This story will help you to understand the concept of mutual fund. So my friend Mukesh, he went to a shop, a sweet shop. मुकेश एक स्वीट शॉप पे जाता है और वो देखकर चकाचौंध हो जाता है कि वहां पे बहुत सारी मिठाइयां पड़ी, बहुत सारी मिठाई पड़ी। I'm very sorry that during these COVID days I'll be giving you a lot of example related to food, but I'm really sorry in advance. So my friend Mukesh, he went to a shop, a sweet shop, where he finds a lot of sweets that were available in the sweet shop. Now Mukesh want to eat each of these sweet. Mukesh सारी स्वीट जो है वो खाना चाहता है, उसका दिल कर रहा है। आगे क्या होता है देखिए। अब मुकेश का मन क्या करता है कि मैं लड्डू भी खा लूं और बाकी जो स्वीट्स अवेलेबल हैं मैं वो भी कंज्यूम कर लूं। मुकेश सारी स्वीट्स को कंज्यूम करना चाहता है, पर द मीन्स दैट आर लिमिटेड। मुकेश हैज ओनली ₹200 in his pocket. Just 200 rupees are there in Mukesh's pocket, where he cannot buy all of the sweets that are available in the shop. Now Mukesh is thinking for any idea how he can buy all the sweets or how he can consume all the sweets. Now Mukesh come up with an idea. मुकेश जी क्या कहते हैं? मुकेश जी दुकानदार को कहते हैं कि ऐसा करिए, आप 1 किलो लड्डू निकाल दीजिए, आप 1 किलो बालूशाही निकाल दीजिए, आप 1 किलो रसगुल्ला निकाल दीजिए, गुलाब जामुन निकाल दीजिए, ठीक है ना? आप सभी कुछ 1-1 किलो निकाल दीजिए। और उसके बाद वो क्या कहता है? उसके बाद वो कहता है कि ऐसा करिए, आप सबको इकट्ठा कीजिए और मिक्स कर दीजिए। दुकानदार ऐसा ही कर देता है, सारी जो स्वीट्स हैं उन्हें इकट्ठा कर देता है और उनको इकट्ठा करके मिक्स कर देता है। अब मुकेश क्या कहता है? अब मुकेश कहता है कि इनमें से, ये सारी स्वीट्स में से, मिक्सचर में से, इन सारी स्वीट्स के मिक्सचर में से आप 1 kg जो है वो मेरे को बांध दीजिए। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? When we go to stock market,
We cannot buy each and every security. For example, if I go to stock market, I feel that HDFC Bank is doing well. I feel that Reliance Industries are doing well. I feel that Adani Ports, they are doing well. I feel that Ruchi Soya is doing well. I feel that Tata Steel is doing well. अब सारे स्टॉक हैं, सारे शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, पर हम सारे स्टॉक खरीद नहीं सकते बिकॉज आर रिसोर्सेस आर लिमिटेड. पैसे तो लिमिटेड है ना, सभी में इन्वेस्ट नहीं करा जा सकता. सो व्हाट कैन बी द श्योरेस्ट मीन ऑफ इनकम? दैट इज म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आपको सभी अच्छे स्टॉक्स का एक मिक्सचर बना के दे देगा. जैसे मुकेश को ये स्वीट्स का मिक्सचर मिल गया, वैसे ही अगर हम अलग अलग शेयर्स, अलग अलग स्टॉक्स का मिक्सचर बना ले, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड. सो दिस इज द you can say this is the most easy example or the most easy concept of mutual fund, how you can understand mutual fund, and I call it as the micro definition of mutual fund. So what is the micro definition of mutual fund? So the micro definition of the mutual fund is a managed group of owned securities of several corporation. तो एक कहावत है, आप सभी अंडों को एक ही बास्केट में ना डालिए. अगर आप सभी अंडों को, सभी एग्स को एक ही बास्केट में डालते हैं, द रिस्क ऑफ फेलियर दैट इंक्रीजेस. सो यू वांट टू हेज योर रिस्क. So in order to hedge your risk, what you can do, you can enter the market with the help of mutual funds. आप डायरेक्टली मार्केट में ना जाइए, आप मार्केट में जाइए, पर किसके थ्रू चाहिए? म्यूचुअल फंड के थ्रू. चलिए, अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है. कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट शेयर इन इंडियन स्टॉक मार्केट अवेलेबल ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड national stock exchange? Can you name any the most costliest? I got one answer, but I need more answers from you all. Can you name? I got two answers. Thank you, Ishan and Prateek. Any other participant who can quote a name of the share or the stock which is the most costliest? I got three answers. Yes, everyone, please. I want this session to be interactive. Please, I need your help. Yes. Okay, yeah, so I got three answers, and the first two answers are correct. It is MRF tires. Okay, so Reliance is not the costliest stock available in the market. It is MRF tires. So just coming upon MRF tires, what is the price of MRF tires? So it was the price of yesterday that was available. That was the price at which MRF tires was trading at. It is not IRB infrastructure. It is not Nestle. It is not Rasoi. It is MRF tires. So MRF tires is one of the costliest stock available in Indian stock market, available on NSE and BSE, and yesterday its price was, that is I think visible on your screen, the price was 82,900 rupees. एक शेयर का प्राइस 82,000 रुपए, तकरीबन 83,000 के. अब हमारे जैसा कोई व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है और मेरे को लगता है कि मेरे को MRF टायर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे को डेफिनेटली कुछ अच्छी रिटर्न मिलेगी. And it has happened. If you can see the graph over here, last year MRF tires was trading nearby 60,000 rupees per share, and now it is nearby 82,900 rupees per share. तो रिटर्न तो ये स्टॉक दे रहा है, पर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जो कि 83,000 का एक शेयर है, और मान लीजिए मेरे पास अगर 50,000 रुपए, तो मैं स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा. क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास इतने सफिशिएंट पैसे नहीं है कि मैं इस कंपनी का एक भी शेयर खरीद पाऊं.
तो मैं अगर ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक प्राइसेस काफी हाई हैं, अगर इनका बेनिफिट लेना चाहता हूं, मैं अगर इनसे प्रॉफिट लेना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन एंटर द मार्केट यूजिंग म्यूचुअल फंड्स। तो कुछ माइक्रो लेवल पे आपको म्यूचुअल फंड का हिंट मिल गया होगा कि माइक्रो लेवल पे म्यूचुअल फंड क्या है। तो अगर हम कहें कि अगर हम बड़े शेयर्स खरीदना चाहते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास कम पैसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के। और दूसरी चीज, अगर आपको बहुत सारे स्टॉक्स पसंद हैं और आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि आप सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाए, तो यू कैन गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। So mutual funds give you a bouquet of investments where you can invest. So coming upon the next concept, the next topic. So this is a bit about history of mutual funds. I hadn't taken the bookish or the formal kind of material for this webinar, because I want this seminar to be more practical, but a bit about mutual funds. That world first saw mutual fund in the year 1972-73, and it was started by the modern mutual fund schemes. They were started by Dutch Republic. Dutch people started the concept of mutual fund. But this concept of mutual fund gained popularity when in 1890s, the mutual funds were introduced in United States. Now, if we talk about India, so first of all, mutual funds were introduced in India in 1963 when UTI, it was established by the Indian government as a subsidiary of Reserve Bank of India. So when mutual funds came into India in the year 1963, but from 1963 to 1987, UTI had monopoly in this sector, mutual fund sector. 1963 से लेकर 1987 तक हमारे पास सिर्फ एक ही देश में कंपनी थी जो म्यूचुअल फंड बेचती थी, दैट वाज यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सो इन 1987 यूटीआई के अलावा एलआईसी और जीआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम हम बहुत सुनते हैं, टीवी पे ऐड आती है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो भी म्यूचुअल फंड सेक्टर में एंटर हुई। और उसके साथ ही अनदर mutual fund, another insurance company, General Insurance Corporation of India, it entered into mutual fund sector. After that, the banks, the government banks, या जिन्हें हम public banks भी कहते हैं, वो भी mutual fund sector में enter हुए, and the first public bank to enter mutual fund sector was SBI, State Bank of India. After 1991 new economic policy, now private banks were also private banks and private companies were also allowed to enter mutual fund industry, and the great boom in mutual fund industry was found in the year 1993. तो 1963 से लेकर 1987 तक हमारे पास एक ही कंपनी रही इंडिया में, यूटीआई। 1987 से लेकर आगे चलने वाले टाइम तक हमारे पास एलआईसी, जीआईसी और बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड सेक्टर में एंटर हुए, और 1993 में प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हुआ। सो आई जस्ट हैव अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, अभी करंटली कितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इंडिया में? प्लीज डोंट गूगल इट, गिव अ रफ आइडिया कि कितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इंडिया में। Anybody who is having just a rough idea, कितनी कंपनीज होगी जो म्यूचुअल फंड सेक्टर में काम कर रही? Yes, participants, a rough idea how many mutual fund companies are working in India these days? Yes, any rough idea? Yes, I got an answer. I got two answers. Third one, yes, as per AMFI. I'm getting a lot of right answers, and I'm quite surprised whether it is Google speaking or whether the answers are coming from
from you all people, and I'm very shocked to know if the answers are correct from your side. The correct answer is 44, and it is the right answer. 44 companies are right now working in India in mutual fund sector. अब बहुत सारे और क्वेश्चन भी मन में अराइज होते हैं, और मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? अब देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे अपने सब प्रोडक्ट्स बनाए हुए। अगर हम आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के ही आगे 2000 प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मैं इन 44 कंपनीज की बात करूं, सो देयर आर मोर देन 50,000 प्रोडक्ट्स or 50,000 mutual funds that are available in the market. Like in stock market, like in share market, we have n number, we have plethora of companies. Just like in mutual funds, we have lot of opportunities and lot of mutual funds are available in the market. But still, I'll tell you how to decode and how to get that which mutual fund is best and which mutual fund is not correct for you. But before going to that, we'll be discussing about the macro definition of mutual fund. अब वही मुकेश को जॉब मिल चुकी है। अब एक और कहानी आपको सुनाऊंगा और इस कहानी से ट्राई करूंगा कि म्यूचुअल फंड की मैक्रो डेफिनेशन जो है, वाइडर डेफिनेशन जो है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। अब यही मुकेश जो हमारा था, जो स्वीट शॉप पे गया था, वो बड़ा हो चुका है। अब वो पैसे कमा रहा है, अब वो जॉब कर रहा है। अब जब मुकेश के पास पैसे आते हैं तो मुकेश ये सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन पैसों को आगे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुकेश ने पहले सोचा मैं कहां पे इन्वेस्ट कर सकता हूं। मुकेश को एक सज्जन ने ये सजेस्ट करा, आप सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए बैंक पे, 3-4% आपको रिटर्न मिल जाएगी और रिस्क बहुत लो है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एफडी करा सकते हैं, आप एफडी में आपको 6-7% रिटर्न मिल जाएगी। बी हैप्पी विद दैट। दूसरी तरफ एक सज्जन ने उन्हें सजेस्ट करा इक्विटी मार्केट में चले जाए, आप शेयर मार्केट में चले जाइए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20 से 30% रिटर्न मिल जाएगी। और एक सज्जन ने उन्हें यह सजेस्ट करा कि आप क्रिप्टो करेंसी में चले जाइए, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए, वेयर यू कैन गेट return of 1,000 to 10,000%, and it had happened in crypto market where you can get a return of 10 to 20,000% also. अब इक्विटी मार्केट में जाते हैं या क्रिप्टो मार्केट में जाते हैं, वहां पे है रिस्क, और सेविंग अकाउंट एफडी में रिस्क बहुत लो है पर उसी के साथ साथ रिटर्न बहुत लो है। अब मुकेश मेरे पास आया और मेरे को कहता है कि मैं इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट नहीं जाना चाहता, मेरे पास पैसे हैं, मैं इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट नहीं जाना चाहता, और ना मैं क्रिप्टो मार्केट जितना रिस्क ले सकता हूं। एफडी की थोड़ी सी रिटर्न या सेविंग अकाउंट की थोड़ी सी रिटर्न मेरे लिए काफी नहीं हो, तो मेरे को कुछ ऐसा सजेस्ट करिए जो दोनों का बैलेंस हो, इक्विटी मार्केट का भी बैलेंस हो और दूसरी तरफ जो है मेरे को दूसरी तरफ बैलेंस मिल जाए एफडी जैसा भी, यानी रिस्क थोड़ा कम हो जाए मेरा। अब ध्यान से देखिए, आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 चीजें सबसे जरूरी होती है। सबसे पहले टाइम, सो टाइम एंड टाइमिंग इज की इन स्टॉक मार्केट। सेकेंड थिंग इज इंफॉर्मेशन, द पर्सन हु इज हैविंग इंफॉर्मेशन इज द किंग ऑफ द मार्केट, एंड द थर्ड थिंग इज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। जब सभी बेच रहे हो आप खरीद रहे हो, और जब सभी खरीद रहे हो आप बेच रहे हो, उसी से आप प्रॉफिट कमा सकते। अब हमारे मुकेश के पास ये तीनों चीजें नहीं। मुकेश क्योंकि जॉब कर रहा है तो उसके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो वो रिसर्च नहीं कर सकता, और उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और मुकेश के पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी नहीं। तो यहाँ पे मुकेश क्या कर सकता है, अपना जो पैसा है उसे इन्वेस्ट करने के। तो हमारे जो मुकेश जी हैं वो जाते हैं मिस्टर अनिल के पास। मिस्टर अनिल फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीओ म्यूचुअल फंड। अब मुकेश क्या करेंगे, मुकेश अपना पैसा इन म्यूचुअल फंड वालों को देंगे। अब ये म्यूचुअल फंड वाले एक्सपर्ट्स हैं, दे आर एक्सपर्ट इनटू इन्वेस्टिंग।
और मुकेश जैसे कई लोगों से इन्होंने पैसा लिया। बहुत सारे लोगों से, मुकेश जैसे बहुत सारे लोगों से क्या करेंगे, फंड रेज करें, पैसा लेंगे। और मान लीजिए मुकेश ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड में, और ऐसे कई हजार लोग हैं, तो ऐसा पैसा इकट्ठा करके इन एक्सपर्ट्स के पास, जो कि फंड मैनेजर होते हैं, इनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मान लीजिए इनके पास 100 करोड़ रुपीस इकट्ठे हो गए। नाउ दे हैव द कैपेसिटी एंड पावर टू इन्वेस्ट in big stocks, and they have all the three things. They have time to invest, they have time to research, they are experts, so they have the regards to information, they have the access to information, and the third thing, they have the risk taking capacity. अब मुकेश के पास ये टाइम नहीं था कि वो बार बार मोबाइल खोले और ये चेक करे कि मेरा स्टॉक ऊपर गया या नीचे गया। मुकेश को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुकेश ने अपना पैसा जो है ये फंड मैनेजर को दे दिया। अब ये फंड मैनेजर की चिंता है कि वो आगे पैसे को कैसे इन्वेस्ट करता है और पैसे के ऊपर रिटर्न कैसे दिलवाता है। बट स्टिल इट इज सेड दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो फंड मैनेजर्स हैं, ये भी आगे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट अप भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है। तो ये म्यूचुअल फंड जो है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। सो हमें इस एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिला? हमें इस एग्जाम्पल से ये सीखने को मिला कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड इज पूल ऑफ मनी। म्यूचुअल फंड इज पूल ऑफ मनी। पूल ऑफ मनी का क्या मतलब? वो पूल जहां पे बहुत सारे लोग जो है अपना पैसा डाले, वो अपना पैसा किसी एएमसी को दे। एएमसी स्टैंड्स फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी स्टैंड्स फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो अपना पैसा किसी एएमसी को दे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे, जिन्हें हम म्यूचुअल फंड हाउसेस भी बोलते हैं। वो अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड हाउस को दे। अब आगे उस म्यूचुअल फंड हाउस की ये सिरदर्दी है कि वो आगे स्टॉक में पैसा लगाएं, बॉन्ड्स यानी डिवेंचर्स में पैसा लगाएं, मनी मार्केट में पैसा लगाएं, या कहीं और पैसा इन्वेस्ट करें। सो इन माइक्रो सेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, और मैक्रो सेंस में मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है। Now we'll be talking much more deeper about the concept of mutual fund. अब मेरे से लोग पूछते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करें? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्यों ना बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें? So I'm going to tell you certain facts about mutual fund. So look into certain facts about mutual fund and then suggest me whether mutual fund सही है या नहीं है. So this data is given by AMF. So this data is given by AMFI, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज। अगर इनके डाटा की माने, that was published on 1st June. So in the last 1 year, the mutual fund industry has increased from 24 trillion to 33 trillion rupees. 24 ट्रिलियन से 33 ट्रिलियन। लास्ट ईयर याद रखें, इट वाज हिट बाय कोविड-19। हम कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इट्स ऑन इट्स पीक। हम कह रहे हैं कि लोगों की जॉब जा रही हैं, पर वहीं पे एक इंडस्ट्री जो है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, वो राइज कर रही। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज गिवन अ राइज ऑफ 35.87% in the last 1 year, which is quite a very significant increase in any of the industry. और फैक्ट्स की अगर आपसे बात करी जाए, अब अगर इंडिया वाइज हम देखें कौन सी स्टेट के लोग ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सो you can clearly see that the red portion which is महाराष्ट्र। तो हम क्यों महाराष्ट्र को या मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं?
The reason is quite clear. Because the people of Maharashtra, they are investing in mutual funds. अब particularly अगर मैं बात करूं अपनी स्टेट की, यानी पंजाब की अगर हम बात करें, so the total investment from Punjab is 35,000 crore, and most of the people, they are investing into equity instruments. मतलब वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट शेयर्स में नहीं. वो म्यूचुअल फंड जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, पंजाब के लोग ज्यादा खुश हैं उन शेयर्स में इन्वेस्ट करके. एंड द नंबर इज क्वाइट हाई, क्वाइट ग्रेट, 35,000 crore total investment from Punjab. But if we compare this number with the highest state, that is Maharashtra, the number is quite different. So the people of Maharashtra, they have invested nearby 14 lakh crore rupees into mutual funds. तो पंजाब की बात करें तो तकरीबन 35,000 crores have been invested into mutual funds. और महाराष्ट्र की बात करें, कंपेयर करें, कॉन्ट्रास्ट करें पंजाब का और महाराष्ट्र का, so the numbers are quite different. But yes, we are a small state. We also are doing investment in other countries also. So obviously हमारा म्यूचुअल फंड्स की तरफ थोड़ा ध्यान कम है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी म्यूचुअल फंड की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं. बट जितनी भी डेवलप स्टेट्स आप देखेंगे, डेवलप कंट्रीज देखेंगे, वहां पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप्ड है. और देखिए अगर आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है म्यूचुअल फंड सही है. फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग दिस दैट म्यूचुअल फंड सही है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए. And participants, if you have any query or any doubt, you can write it in the chat box. I'll try to answer each of your queries. So if you have any query, if you find anything difficult, you can write this in the chat box. Now if I talk bit about the various types of mutual fund, ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके लिए डिस्कस करने के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूं आपको, ध्यान से देखिए. तो देखिए बेसिकली म्यूचुअल फंड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आप दो तरह के म्यूचुअल फंड देखेंगे. बेसिक दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होते हैं ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स और एक होते हैं क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स. ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं? वो म्यूचुअल फंड्स जिनमें एंट्री और एग्जिट कभी भी की जा सकती. मतलब आप कभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं और कभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकते हैं. सो द एंट्री एंड एग्जिट इज फ्री. दे आर कॉल्ड एज ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स. जैसे मैं आज कोई म्यूचुअल फंड खरीदना चाहूंगा तो मैं ओपन एंड म्यूचुअल फंड खरीद. अब क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? वो म्यूचुअल फंड जिनमें एंट्री सिर्फ कुछ टाइम के लिए या एग्जिट तो नहीं कह सकते, पर एंट्री जो है वो कुछ टाइम के लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ही अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स. जैसे मान लीजिए मैंने एक म्यूचुअल फंड की स्कीम निकाली जिसमें आप 20 जून से लेकर 25 जून तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. सो दैट विल बी कॉल्ड एज closed end mutual funds. Yes, Prateek had rightly written that closed end mutual funds can be purchased during NFO also only. So ऐसा नहीं है कि आप जब भी चाहें closed end mutual funds को खरीद सकें. closed end mutual funds को आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए परचेज कर सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड में परचेज कर सकते हैं, उसके बाद आप इनको परचेज नहीं कर सकते. ओके, थैंक यू वेरी मच प्रतीक फॉर योर इनपुट. अब देखिए ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स भी आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें तो वो या तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. आप तो अब तो देखिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. जैसे आप अगर डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहें तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड जो है वो फुल हो जाता है,
आप उस म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आजकल हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड एज फंड ऑफ फंड्स। दैट इज कॉल्ड एज फंड ऑफ फंड्स, जिसका मतलब क्या है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का में इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग से फंड बना दिया जाए, उसे कहा जाता है फंड ऑफ फंड्स। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडेक्सेस में, देखिए हमारे पास 2 इंडेक्स हैं इंडिया में, जिसे हम कहते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है ना। अब इनके बारे में आप इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज सेंसेक्स एंड व्हाट इज निफ्टी, वो मैं डीरेल हो जाऊंगा अपने टॉपिक से, बट आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में भी कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। और बहुत अच्छी आपको आसान तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि सेंसेक्स में और निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की बजाय हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से हम सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहते, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली कम रिस्क है एज कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। ओके, जस्ट टेक अनदर एग्जांपल. I'll give you one more example to understand the concept. So I'm taking you to another screen. I think the screen is visible. Okay. So I have a question for all of you. Can anybody tell me कि इंडिया में अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में हुई है? एक आसान सा क्वेश्चन। अगर हम पिछले 1 साल को देखें, जहां पे सिनेमास बंद हैं, जहां पे रेलवेज बंद है, जहां पे काफी सारे सेक्टर्स बंद हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ, आई एम नॉट सेइंग ग्रोथ, मैं आपसे अगर पूछूं सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में हुई है, तो काइंडली टेल मी, एक सेक्टर का नाम लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है और वो सेक्टर बहुत बूम हुआ है। आई गॉट एन आंसर स्टील, नो स्टील इज नॉट दैट सेक्टर। I got an answer service sector. Sorry, my friend, service sector is not the right answer. एक सेक्टर का नाम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, जो चीजें कभी बंद नहीं हुई, लॉकडाउन लगा पर उस चीज के ऊपर लॉकडाउन नहीं लगा, कौन सी चीज है? Yes, do tell me. Yes, I'm getting, investment is not a sector. I'm asking you the sector. I'm getting some answers. Yes, medical, health sector. Yes. एग्रीकल्चर, नो, एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर आप ग्रोथ की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर हैड शोन अ वेरी स्लो ग्रोथ ओवर द इयर्स। जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ 3 से 4% की ग्रोथ है हमारे पास। आईटी एंड फार्मा, सो आई गॉट द राइट आंसर फ्रॉम मेनी ऑफ यू पीपल। द राइट आंसर इज फार्मा सेक्टर। सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी सेक्टर ने देखी है, इट्स नॉट म्यूचुअल फंड, इट इज फार्मा सेक्टर। म्यूचुअल फंड तो एक वे है ना उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, सो इट इज द फार्मा सेक्टर। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कैसे देखें म्यूचुअल फंड को, तो जैसे मैंने एक एप्लीकेशन ये खोला हुआ है, आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड पे जा सकते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे सर्च करा फार्मा, तो फार्मा में इन्वेस्ट करने के लिए जो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं वो मेरी स्क्रीन पर आ, अब मैं किसी के ऊपर भी क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक करा, आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ऊपर, तो इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि ये फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर के अलग अलग कंपनीज में, जैसे सन फार्मा, जैसे सिप्ला और जैसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, जितने भी फार्मा सेक्टर की कंपनीज हैं उनमें ये इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें इस सेक्टर के बारे में, so we all know that COVID that hit us in the month of March. So its NAV price in the month of March, if you can see, it was nearing 9. इसका NAV जो है वो 9 के करीब था, और अगर अब की बात करें तो इसका NAV जो है वो तकरीबन 19 रुपए के करीब है। तो अगर मैं गलत नहीं हूंगा ये कहने में कि जो फार्मा सेक्टर है
उसने पिछले 1 साल में लोगों का पैसा डबल कर दिया। अब अगर आपको कोई कहे ना 21 दिन में पैसे डबल, वो तो हो नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हो भी रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट ये सेक्टर जो है फार्मा सेक्टर, इसने लोगों का पैसा 1 साल में डबल जरूर करा है। And the people who were aware about this opportunity, they took this opportunity and their money got doubled in the last 1 year, and that is also through mutual funds. मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे। बट यहाँ पे इस पेज को देखते हुए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी। सबसे पहले जो मैंने बात करी NAV, ये NAV क्या होती है? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आपसे, एक चीज यहां पे भी लिखी हुई है SIP, which is called as SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये SIP क्या है? तो सबसे पहले ये NAV क्या है और दूसरी चीज ये SIP क्या है, तो इसके बारे में मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ये NAV क्या है और NAV के बेसिस पे आप कैसे जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और NAV कैसे हेल्प करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। सो आई एम टेकिंग यू टू अनदर स्क्रीन। सो सबसे पहले बात करेंगे NAV के बारे में। अब ये NAV क्या होती है? तो आसान भाषा में अगर आप गूगल करेंगे तो NAV इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय अ स्कीम। तो सिक्योरिटीज की टोटल वैल्यू क्या है, उसे हम कहते हैं NAV। जैसे शेयर्स में शेयर प्राइस होता है, म्यूचुअल फंड में NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू होती है। अब आप किसी शेयर में कैसे इन्वेस्ट करें? अगर आपको लगता है कि उस शेयर का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो आप उस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आपको लगेगा कि उन म्यूचुअल फंड्स की NAV जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो आप उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। So mutual fund game always revolves around NAV value, that is net asset value. तुम कहोगे सर आपने बता तो दिया पर समझ में नहीं आया, ये NAV है क्या? थोड़ा आसान करके बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, NAV को आसान कैसे किया जा सकता है और एक इजी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। Again, I am very sorry, I am taking example of a food item because I found it appropriate to tell you the concept of NAV. I am again taking an example of a food item. So yesterday I ate a pizza, and when I was eating a pizza, I thought that this example could be shared with you people, and I can explain you the concept of NAV. Gurman, I think I had seen a name on the screen. Can we invest in a mutual fund without any application? I'll be answering these questions in the later part. Okay, so first let us concentrate of NAV and let us concentrate the pizza which is available on our screen. So the cost price of this pizza is 100 rupees. अब ये पिज्जा की 100 रुपए कॉस्ट प्राइस कैसे बनी? देखिए, इसके ऊपर 20 रुपए का बेस लगा, 30 रुपए का चीज लगा और 50 रुपए की टॉपिक्स मिली। ये सभी को अगर हम मिला दें तो इस पिज्जा की, अभी मैंने प्रॉफिट की बात नहीं करी आपसे, मैंने लेबर की बात नहीं करी। मान लीजिए ये पिज्जा आप घर पे बनाते हैं तो ये पिज्जा आपको 100 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है ना? अब ये पिज्जा आप अकेले तो खाएंगे नहीं, है ना? आप अकेले तो ये पिज्जा खाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, इस पिज्जा को अपनी फैमिली के 4 मेंबर्स के साथ जो है डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि ये पिज्जा 100 रुपए का था, तो अगर मैं इसके 4 स्लाइस करता हूं तो हर एक फैमिली मेंबर को ये पिज्जा स्लाइस कितने का पड़ेगा? 25 रुपए का। ये पिज्जा स्लाइस हर एक फैमिली मेंबर को कितने का पड़ा? 25 रुपए। ठीक है, तो ये 25 रुपए इस पिज्जा की NAV है। तो क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू की जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उस म्यूचुअल फंड को एक पिज्जा की तरह हम ये देखते हैं कि हमें उसके लिए कितना फंड चाहिए। फिर हम उन फंड्स को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उन पार्ट्स को शेयर कहा जाता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स को
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उन्हें कहा जाता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स। वैसे ही जैसे शेयर में शेयर प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में उनकी नैव वैल्यू होती है। तो अगर हम पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम म्यूचुअल फंड्स को कुछ यूनिट्स में डिवाइड करें, अब हर एक यूनिट का एक प्राइस होगा और उस प्राइस को हम नैव वैल्यू कहें। चलिए मैं आगे चलूंगा, थोड़ा सा जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। अगर हम एक नैव वैल्यू निकाल कर देखें, तो मैंने एक एग्जांपल ली है। तो नैव का एक सिंपल फॉर्मूला है एसेट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, तो ये समझना उनके लिए आसान होगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप देखें, ये एक कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक एएमसी है, जिन्होंने सिर्फ 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, टीसीएस में और रिलायंस में। कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने डिबेंचर्स में की है और कुछ पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में रखा है। तो अगर आप इनके एसेट्स का टोटल करें तो वो आ जाता है 52 करोड़। ऐसे ही अगर आप लायबिलिटीज को देखें तो मैनेजमेंट फीस ऑब्वियसली इनको पे करनी पड़ेगी, और कुछ लोगों के म्यूचुअल फंड क्लेम्स जो लोग कहेंगे कि हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, वो क्लेम्स मिला के हो जाते हैं 1 करोड़। एक और एक, ये टोटल हो गया लायबिलिटीज का 2 करोड़। सो एसेट वर्थ 52 करोड़ एंड लायबिलिटी वर्थ 2 करोड़। तो इससे आपके पास निकल आएगी एसेट वैल्यू। अब इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने मान लीजिए 2 करोड़ यूनिट्स जो हैं मार्केट में इशू की। अब अगर मैं इसे 2 करोड़ से डिवाइड कर देता हूं तो 50 डिवाइड बाय 2 इट कम्स टू बी 25 रुपीज। तो इस म्यूचुअल फंड की नैव वैल्यू क्या होगी? 25 रुपए। अब ये नैव वैल्यू कैसे बढ़ेगी? देखिए, नैव वैल्यू तब बढ़ेगी जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। एसेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके नैव की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपके एसेट की वैल्यू हो जाती है 52 करोड़ से 62 करोड़, 62 करोड़। तो फॉर्मूला में अब क्या हो गया? 62 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, सो इट कम्स टू बी 60 बाय 2, दैट इज 30 रुपीज। तो नैव 25 रुपए से बढ़ के हो गई 30 रुपए। तो कुछ इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में नैव बढ़ती है और कम होती है। पहले जब हमारे पास कंप्यूटराइजेशन सिस्टम नहीं होता था, तो नैव जो है वो हर वेडनेसडे को न्यूज़पेपर में प्रिंट होती थी। जितने भी हमारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है वहां पे प्रिंट होती थी। उसके बेसिस पे लोग इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड्स। पर अब ऐसा नहीं होता। अब कैसे होता है? अब डेली बेसिस पे आपके पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी नैव अवेलेबल होती है। आगे चलें अगर और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैंने बात करी थी वो था सिप। अब ये सिप क्या है? यस प्रतीक, इट इज अवेलेबल एट द ट्रेडिंग डे आफ्टर द मार्केट क्लोजेस एट 4 o'clock। 4 बजे के बाद आपके पास थोड़ी देर बाद आपको 6 बजे के करीब नैव जो है वो अपडेटेड मिल जाए। अब दोबारा से बात करते हैं मुकेश की। तो मुकेश की कहानी दोबारा से सुनते हैं और उससे समझते हैं ये सिप क्या होती है। सिप स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो मुकेश को अब 2,000 रुपए मिल रहे हैं पॉकेट में। मुकेश इज गेटिंग 2,000 रुपीज एज पॉकेट मनी। बीच में से 1,500 रुपए मुकेश खर्च देता है पूरे महीने पे, और मुकेश के पास बचे 500 रुपीज। अब मुकेश फिर मेरे पास आया और कहता है, सर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मेरे पास पर पैसे बहुत कम है, 500 रुपए हैं सिर्फ, तो मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, कैसे करें? तो अगर आपके पास कम पैसे हैं, बहुत कम पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास एक महीने के 500 रुपए आप सेव कर पाते हैं, तब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ा अमाउंट या लंप सम इन्वेस्टमेंट ही करनी है म्यूचुअल फंड। तो आप छोटे स्टॉक्स को भी इन्वेस्ट, छोटे अमाउंट्स को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में थ्रू सिप। अब एक और एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूं तो ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है कोका कोला। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कोका कोला की बोतल को एक घूंट में पीना है तो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाए।
पर अगर मैं आपको कहता हूं आप इसको सिप करके पिए, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको सिप करके पिए, एक एक घूंट करके पिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में हम इकट्ठी इन्वेस्टमेंट करने की बजाय कुछ रेगुलर इवेंट्स पे, चाहे मंथली कीजिए, चाहे क्वार्टरली कीजिए, चाहे ईयरली कीजिए, आप छोटे छोटे अमाउंट्स जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहा जाता है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज सिप। इकट्ठा पैसा ना लगाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। जहां पे अगर आप मान लीजिए सिप लगा देते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में से हर महीने या हर क्वार्टरली अमाउंट जो है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में से, आपके बैंक अकाउंट में से अपने आप कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। तो हर महीने ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग हो रही है और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप 500 रुपए से भी सिप शुरू कर सकते हैं। अब तो बेटा स्टूडेंट्स और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, अब तो सिर्फ 100 रुपए से भी शुरू हो जाती है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी जो है एक्सेप्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिप। पर सब कुछ समझ में आने के बाद भी एक चीज समझ नहीं आई कि म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा बढ़ता कैसे। तो उसके पीछे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। और ये बहुत यूजफुल और एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। एक बहुत प्रोमिनेंट बुक है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग के थ्रू आप अपना पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिक अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको कंपाउंडिंग का, तो कंपाउंडिंग का क्या मतलब है, जब आपको आपके अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिले और जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिले, तो उसे कहते हैं हम कंपाउंडिंग। जब आपको आपके अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिले और इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिले, उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा और कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करूंगा। तो मैं आपको एक अलग स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, प्लीज देखिएगा इसको। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डैशबोर्ड खोला हुआ है। तो मान लीजिए मैं हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप देख पाए स्क्रीन पर, तो हर महीने मैंने सिप का अमाउंट लिखा हुआ है 1000 रुपए, और मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। मुझे हर साल मान लीजिए सिर्फ 9% की रिटर्न मिल रही है, ज्यादा रिटर्न नहीं मांगते, 9% की रिटर्न मिल रही है। 10 साल अगर हर महीने मैं बिना रुके 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो तकरीबन 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर पाऊंगा। और इसी रेट ऑफ रिटर्न से अगर मेरे को हर साल रिटर्न मिलती है, so my money will be 1,95,000. So there will be return of about 75,000 rupees in a period of 10 years at just 9%. So here is how compounding works. तो कंपाउंडिंग आपके पैसों को कई मल्टीफोल्ड्स इंक्रीज कर देता है, और यही है ब्यूटी म्यूचुअल फंड्स की, कि म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा कैसे बढ़ाता है। म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से बढ़ा पाता है। तो म्यूचुअल फंड आपका पैसा कंपाउंडिंग के थ्रू जो है वो इंक्रीज करता है। और कंपाउंडिंग के बारे में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है, दैट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग कंपाउंडिंग को समझ लेते हैं वो कंपाउंडिंग से बहुत पैसा कमाते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो कंपाउंड के रूप में कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और इसी की वजह से म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो पैसे कमा पाते हैं। सो दिस इज वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो पीटर लिंच, वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस इन्वेस्टर एंड वन ऑफ द most smartest mutual fund manager, says that equity mutual funds are the perfect solution for the people who want own stock without doing their own research. अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप रिसर्च नहीं करना चाहते, फिर भी आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं और मार्केट में स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ओनर बन सकते हैं कंपनी के म्यूचुअल फंड्स के। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अब तो इंडियन गवर्नमेंट भी कह रही है कि म्यूचुअल फंड सही है, खासकर स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ऐसे ही अगर मैं एक्सप्लेन करूं
तो अगर हम रिस्क हायरार्की को देखें तो सबसे नीचे हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं, एफडी हैं, जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर थोड़ा सा रिस्क और आप बढ़ाना चाहें तो आप डेट में इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं तो आप इक्विटी में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिस्क बढ़ाना चाहते हैं तो फ्यूचर ऑप्शंस या कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा रिस्क करेंसीज में होता है या क्रिप्टो करेंसीज में। तो अगर आप मार्केट में इंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट को समझ सकते हैं और मार्केट को सीख सकते हैं। So, as it is said that mutual fund investment is subject to market risk, हम समझते हैं मार्केट रिस्क है, पर जहां पे रिस्क होगा वहीं पे रिवॉर्ड होगा, वहीं पे रिटर्न होगी। So this was a basic outlay of mutual funds. And at last, I'm very thankful to all of you. A very intuiting and very important. I can say that this is one of the very good audience that I had got, जिन्होंने मेरे को बहुत आराम से सुना और participate भी करा इस पूरे session में. So over to Deepshi ma'am. Thank you sir, thank you so much. इतने कम टाइम में इतना कुछ आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जितनी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने अपने से समझाई वो सभी बच्चों ने अच्छे से समझी, बिकॉज व्हाट आई फील कि कंसेप्ट्स की क्लैरिटी तभी होती है जब हम लाइव एग्जांपल्स सामने कोट करते हैं। सो योर वेबिनार वाज वेरी गुड, वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ अगर किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी हमारे पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है, सो वी कैन मूव टुवर्ड्स दैट एंड अंशुला मैम विल टेक द क्वेरी सेशन। थैंक यू। Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself, Anshula, from Department of Commerce, CRM, GAV College, Nakoda. Sir, here are some queries. Is mutual fund with low NAV is better or not? Is a mutual fund with low NAV is better or not? Better or not? So this is a basic myth in the people that low NAV means that the mutual fund is cheap. देखिए NAV के हमने कंपोनेंट्स जो हैं वो देखे, तो NAV में 3 कंपोनेंट्स हैं जो काम करते हैं। पहला है उस NAV के एसेट्स, दूसरा है उस NAV की लायबिलिटीज, और तीसरा है उसके यूनिट्स। तो NAV के बढ़ने या कम होने में सिर्फ एसेट्स का रोल नहीं होता, हम सिर्फ फोकस करते हैं एसेट्स की तरफ, उसमें लायबिलिटीज भी है। अगर किसी म्यूचुअल फंड की लायबिलिटीज कम हो जाए तब भी उसकी NAV बढ़ जाती है, और लायबिलिटीज बढ़ जाए तो उसकी NAV जो है वो कम हो जाती है। तो अगर हम कहें जैसे हम स्टॉक्स में कहते हैं कि जैसे ही शेयर प्राइस कम होता है तो हम ये सोचते हैं कि अब उस शेयर की बाइंग जो है वो खुल गई है, हम इसे बाय करते हैं। म्यूचुअल फंड में सिमिलर कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सभी को समझना पड़ेगा, जो डिफरेंस है म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स। शेयर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए, वो सेबी के पास लिस्टेड हुई। तो जब सेबी के पास लिस्ट होते हैं तो हमें पता होता है कि पहले दिन उसका शेयर प्राइस क्या है और कितने यूनिट्स मार्केट में फ्लोट कर। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड लिस्टेड नहीं होते। तो म्यूचुअल फंड की NAV जो है वो म्यूचुअल फंड हाउस के हाथ में होती है। तो उसे म्यूचुअल फंड हाउसेस जो हैं वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और चीप NAV यानी कम NAV का ये मतलब नहीं है कि उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है। आप हाई NAV पे भी इन्वेस्ट करेंगे वो और बढ़ेगी। तो इसको कंफ्यूज मत करिए कि शेयर प्राइस और NAV दोनों बिल्कुल सेम। शेयर प्राइस सिर्फ एक कंपोनेंट है, जबकि NAV में बहुत सारे और पोर्शंस भी इन्वॉल्व हैं। यस मैम, आई थिंक दिस क्वेरी इज क्लियर। यस, योर नेक्स्ट क्वेरी। सर नेक्स्ट जो है वो हमारे सर की क्वेरी है, व्हाट इज द ग्रॉस एसेट वैल्यू कॉन्सेप्ट? ग्रॉस एसेट वैल्यू कॉन्सेप्ट बाय डॉक्टर कमलजीत सिंह। Just wait a minute, ma'am. I'm taking the other queries also.
Yes, ma'am. I think I'm visible on the screen. Okay, very good question by Dr. Kamaljeet Singh, I think so. What is gross asset value? So the basic difference between NAV and GAV, which is gross asset value. देखिए NAV को निकालने का फॉर्मूला है assets minus liabilities divide by that is the units which are floated in the market. और GAV में एक चीज सिर्फ कम हो जाएगी, आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस नहीं करें. आप GAV कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए म्यूचुअल फंड्स को देखने के दो तरीके हैं. हम NAV देखते हैं जो ज्यादा पॉपुलर है और उसके साथ हम GAV भी देखते हैं. GAV में क्या करते हैं, हम सिर्फ नेट एसेट्स जो टोटल एसेट्स हैं उसे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स. तो GAV में हम लायबिलिटीज को कंसिडर नहीं करते. क्योंकि हम लायबिलिटीज को कंसिडर नहीं करते तो GAV इज नॉट अ वेरी यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और हम इस पे भरोसा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लायबिलिटीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड्स का. तो NAV वैल्यू इज a better thing to understand a mutual fund rather than GAV value, that is gross asset value, जिसमें हम liabilities को जो है consider नहीं. Okay, next question ma'am. Sir, can mutual fund be withdrawal anytime? The open end mutual funds can be withdrawn anytime. There are timings that are mentioned when you can invest in the mutual funds. Like mutual fund, they open up certain mutual funds, they open at 1 o'clock. So you can invest in them at the time of 1 o'clock on any working day. But they can be withdrawn. But इसमें देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आपको पैसा आने में, अगर आप मैं ऐसा कहूँ कि आपने विड्रॉ करा और आपको साथ में पैसा आएगा, वो गलत है. जैसे हम बैंक में से पैसा निकालते हैं, हम म्यूचुअल फंड में से वैसे पैसा नहीं निकाल सकते. अब देखिए म्यूचुअल फंड हाउस ने भी उसे आगे कहीं पे इन्वेस्ट करा, तो म्यूचुअल फंड हाउस क्या करेगा, वहां से इन्वेस्टमेंट वापस लेगा या कहीं ना कहीं से उस पैसे को लगाएगा और फिर आपको वो पैसा देगा. सो इट टेक्स अबाउट 2 to 3 वर्किंग डेज जिसमें आपको आपके पैसे जो है वो वापस आ जाते हैं. सो मिनिमम इट टेक्स 2 to 3 days. बट यस, इन ओपन एंड सीरीज of mutual funds you can take money back at any time. से टेंशन छूने हैं, उससे छूने हैं, अपनी बॉडी के जितने भी मेजर पार्ट्स हैं, चाहे वो ब्रेन हो गए. Ma'am, I'm sorry, I'm unable to. Can you repeat, ma'am, please? Your voice was not very much audible. Can you repeat, please? Or you can drop your query in chat box. So ma'am, I got another question. I would like to answer that. Is there any tax benefits on mutual funds? There are certain investments under section 80C of Income Tax Act 1961 जहाँ पे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट ने और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने हमें बेनिफिट दिया है कि आप अगर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के अंडर जो है आपको बेनिफिट्स मिलते. तो अगर आपका म्यूचुअल फंड भी उन्हीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको वहां पे भी बेनिफिट मिल सकते हैं. तो देयर आर certain mutual funds that give you tax benefits also. So there are n number of mutual funds that give you tax benefit. You can also invest in those mutual funds. I think this is query by Madhav Gulati. Okay, so I think this is clear. Yes ma'am, any other question? No sir, thank you so much. Now Madhavi ma'am is coming for the vote of thanks. Thank you sir. So now Madhavi ma'am will come and deliver vote of thanks. So I feel that this question answer round was very healthy. Many of the doubts of our participants are cleared. Thank you so much, sir. Now Madhavi ma'am will continue ahead. Thank you. Thank you, ma'am. A very good afternoon, all of you. On behalf of Department of Commerce of KRM DAV College, Nakodar, I, Madhavi Sharma, Assistant Professor of Commerce, would like to thank our keynote speaker and resource person, Mr. Navdesh Gambhir sir, for such a wonderful session. It was full of knowledge and interest. We enjoy a lot your session, sir. I extend my heartfelt thanks to our principal, sir, Dr. Anup Kumar, for motivating us and given guidance to organize such a webinar. I owe
Special thanks to Professor Kamaljeet Singh, Department of Economics and Department of Home Science for their continued support. I must not forget to thank Professor Jasbir Singh for his technical support. I owe special gratitude to our participants for participating in such a live session. We truly appreciate your support. Now, I congratulate the Department of Commerce for successful convening the webinar. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, thank you, ma'am. Thank you so much. So, important notice for our participants, like as we have concluded the webinar, feedback form link. The link of feedback form will be shared in the WhatsApp group. Kindly fill that link so that we can send you your participation certificates. Those participation certificates will be sent on your email. आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, जैसे ही वेबिनार फिनिश होगा, फीडबैक लिंक जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा. उसको फिल करने के बाद जितने भी ई सर्टिफिकेट्स हैं, द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, दैट विल बी सेंट टू योर ईमेल्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. So thank you once again and stay safe. Thank you.